So today we are going to start our fourth lecture of advanced spectroscopy. Our topic in our last three classes was theory and applications of ultraviolet spectroscopy. In last class, we have discussed Woodward-Facer rule for dienes. Basically, this rule is applied to determine the lambda max of various chromophores, and those have structural feature of a diene. According to this rule, the dienes are categorized into two subclasses, that is heteroannular dienes and homoannular dienes. In the structural term, heteroannular dienes are transoid and homoannular dienes are schizoid. So they in heteroannular dienes, the conjugated double bond is present in separate rings, while in homoannular dienes, the double bonds of conjugated system are in same ring. So we have discussed the different lambda values for the dienes in terms of the Woodward-Facer rule. Schizoid has the parent lambda value of 253 nanometer, and the transoid or heteroannular system has the lambda value of 214 nanometer. If some structure has double bond extended conjugation, then we assign 30 nanometer value, and we further add 5 nanometer depending on the number of ring residues and alkyl substituents. If there exists any exocyclic double bond, then we assign the value of 5 nanometer. And if some polar group is present like OR, we give the value of 6 for halogens, 5, and for NR2, and that is tertiary amines, 60. And so we have discussed some examples as well. For example, this structure is transoid. So the parent lambda max value for transoid is 214 nanometer. This structure has 3 ring residues, and for each ring residue the value is 5, and for 3 ring residues we will add total 15 nanometer in addition to the parent lambda max. And there is one exocyclic double bond, this one, so it has the value of 5. So according to Woodward's rule, this structure should have the lambda max of 234 nanometer. Similarly, we will look at the second structure. This structure is also transoid, that is heteroannular structure. So the parent value for this transoid structure is 214 nanometer. The ring residues, we will count the ring residues in this structure, that is 1, 2, and 3. So we have 3 ring residues. For 3 ring residues, the total uh, wavelength we will add to the parent structure is 15 nanometer. For exocyclic double bonds, there is only one exocyclic double bond, so we will add 5 nanometer further. There is one polar group, you can add 6 value because of the polar group. So the sum of these values are 240 nanometer. So this structure should have the lambda max at 240 nanometer according to the Woodward-Facer rule. And similarly, we have practiced some more structures like these, and we assigned the lambda max values by using the Woodward-Facer rule. Look at this structure. This one is schizoid. Yes, the parent wavelength value for schizoid is 253 nanometer. And the ring रेजिड्यूज यहाँ पे कितने हैं, काउंट करें इस स्ट्रक्चर में. एक ये रहा, 2, 3 है ना, 3. और यहाँ पे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट सेपरेटली काउंट हुआ है. ठीक है, तो ये 3 रिंग रेजिड्यूज हुए, और इस तरह अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एक है, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स इस रिंग के हिसाब से देखें तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बाकी कहीं पे भी नहीं है. तो इसके लिए आपने 5 वैल्यू असाइन किया, और ये इस तरह
278 नैनोमीटर आपने इसकी वेवलेंथ प्रेडिक्ट की थी। अच्छा, इसी तरह इसके लिए यहाँ पे दोनों फीचर्स आ रही थी, ट्रांसोइड एंड सिजोइड। तो आप लोगों ने इसको इसमें प्रीफर किया था सिजोइड, क्योंकि लेमडा मैक्स जो है वो सिजोइड का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रांसोइड, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो सिजोइड 253 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक, अच्छा इसमें रिंग रेजिड्यूज काउंट करते हैं, एक ये रहा, 2, देन 3, देन 4, और इस तरह एक ये रहा 5 रिंग रेजिड्यूज यहाँ पे आ गई हैं। तो इस तरह इसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन देखें तो एक डबल बॉन्ड ये एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को, दूसरा डबल बॉन्ड ये एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन। अच्छा, इस तरह यहाँ पे एक पोलर ग्रुप भी है 6, और इस तरह ये एग्जांपल हमने कल लास्ट टाइम की थी, 359 नैनोमीटर इसका वैल्यू आया था। अच्छा, अब यहाँ से आगे हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे फेजर-कुहन रूल फॉर कंजुगेटेड पॉलीइन्स। जो वुडवार्ड का रूल था वो डाइइन्स के लिए था, जो हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन वो रूल पॉलीइन्स के लिए अप्लाई नहीं होता। पॉलीइन मीन्स, डाइइन मीन्स दो डबल बॉन्ड्स कंजुगेशन में हो तो वो डाइइन हुआ, लेकिन अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हों, 10, 12, 15, 20 डबल बॉन्ड्स हों, तो वो पॉलीइन में आ जाएगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होंगे। तो इसका मतलब फिर पॉलीइन्स के लिए वुडवार्ड फेसर रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा रूल अप्लाई करेंगे जिसको हम कहते हैं फेसर-कुहन रूल फॉर कंजुगेटेड पॉलीइन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम बेसिकली एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं इस रूल में लेमडा मैक्स फाइंड करने के लिए, और इसका एडवांटेज ये है कि हम इस रूल की मदद से लेमडा मैक्स भी फाइंड कर सकते हैं, यानी वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो इससे दो वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, लेमडा मैक्स एंड मोलर एप्सिलॉन मैक्स। तो लेमडा मैक्स फाइंड करने का इक्वेशन ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। लेमडा मैक्स फाइंड करने के लिए इक्वेशन है 114, दैट इज पेरेंट लेमडा मैक्स वैल्यू है, प्लस 5m प्लस n इंटू 48 माइनस 1.7n, इसी तरह माइनस 16.5 r एंडो माइनस 10 r एक्सो। इस इक्वेशन की मदद से आप लेमडा मैक्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 114 बेसिकली पेरेंट एब्जॉर्प्शन वैल्यू है, पेरेंट एब्जॉर्प्शन वैल्यू। m, यहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स को। m यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स को। n जो है स्मॉल n, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स को, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को कंजुगेट जो कंजुगेशन में है। अगर कंजुगेशन से आउट हैं तो उनको आप काउंट नहीं करेंगे, वो डबल बॉन्ड्स जो कंजुगेशन का हिस्सा हैं उनको आप काउंट करेंगे। तो इसी तरह m और n वैल्यू हो गया। r एंडो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई रिंग हो नंबर, तो आप एंडोसाइक्लिक रिंग हो तो आप नंबर ऑफ एंडोसाइक्लिक रिंग्स को काउंट करेंगे। सो आर एंडो इज नंबर ऑफ रिंग्स विथ एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन द कंजुगेटेड सिस्टम। और आर एक्सो क्या हुआ, एनी नंबर ऑफ रिंग्स विथ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यहाँ पे एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, अगर ये रिंग है फॉर एग्जांपल, इस रिंग में डबल बॉन्ड इनसाइड है, ये हुआ एंडोसाइक्लिक रिंग। ठीक है। अच्छा, दूसरा रिंग है जिसमें डबल बॉन्ड रिंग से आउट है लेकिन रिंग के साथ एडजस्टेड है, तो इसको आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, इस तरह। तो एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक, ये तो देखते ही पता चल जाता है, इजी है, लेकिन दो चीज़ें जो आपने में कॉमन याद रखनी है, एक कौन सा काउंट करनी है,
एक कैपिटल एम दैट इज अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स एंड रिंग रेजिड्यूज, और सेकंड वन स्मॉल एन दैट इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो इस इक्वेशन की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा मैक्स, और इस रूल को हम क्या कहते हैं, फेसर-कोहन रूल। अच्छा, इसकी मदद से हम एक और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी फाइंड करने का सिंपल एक इक्वेशन है, वो क्या है, पेरेंट वैल्यू को स्क्वायर पावर करते हैं विथ नंबर ऑफ एन, यानी पेरेंट वैल्यू यहाँ असाइन हुआ है 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। इसके ऊपर आप पावर ऑफ एन लगाते हैं। एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे बताया था एन इज बेसिकली नंबर ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे तो मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दिस स्ट्रक्चर। अच्छा, हम इस स्ट्रक्चर, ये बेसिकली एक कंजुगेटेड पॉलीइन है, पॉलीइन सिस्टम है। तो यहाँ पे हम वुडवार्ड फेसर रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, फेसर-कोहन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला आपको याद होगा, बेस वैल्यू क्या है 114। इसमें जो आपको चीज़ें फाइंड करनी है वो क्या है, चार चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स एंड रिंग रेजिड्यूज, नंबर 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नंबर 3 आर एंडो, नंबर 4 आर एक्सो। तो इस पूरी स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पे कोई रिंग है ही नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई रिंग नहीं है, तो आर एंडो और आर एक्सो का तो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ यहाँ पे। अब दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, एक क्या, नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, और दूसरा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो इसको हम तो कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स फाइंड करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, लेकिन ये कंजुगेशन का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे देखें, कंजुगेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, आप सिंपली इसके ऊपर क्रॉस लगा सकते हैं इस तरह, इसको काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, तो यहाँ इस साइड पे भी देखें तो ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, तो हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। हमने किन डबल बॉन्ड्स को काउंट करना है, जो इन कंजुगेशन में हो। सबसे पहले हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को काउंट करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7, देन 8, 9, 10, 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ कितनी है, 11। तो आपने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स फाइंड किए 11। अच्छा, अब दूसरा क्या करना है, कैपिटल एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 1, 2 डबल बॉन्ड्स 11 हुए। कैपिटल एम मीन्स नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ से काउंट करें, डबल बॉन्ड 1 नंबर यहाँ अपनी इस क्या था, यहाँ से एक की अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा एक हुआ, ये दूसरा, देन ये थर्ड वन, 4, 5, 6, 7, 8, ये पूरा मिला के 8 हो गए। तो इसके अंदर कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, 8। अब आप सिंपली इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, जो हमने पहले फॉर्मूला दिखाया था उसको यूज करते हुए, उसमें m की वैल्यू 8 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, और आप क्या कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह अब यहाँ पे ये फॉर्मूला था, पेरेंट वैल्यू 114 प्लस 5 कैपिटल M था, m की वैल्यू हमने 8 रखी, प्लस 11 n की वैल्यू हमने 11 रखी, इंटू 48.0 माइनस 1.7 इंटू n। ठीक है, n की वैल्यू अगेन हमने यहाँ पे 11 रखी, और इसके बाद बाकी इक्वेशन को सेम उसी तरह फॉलो करें। f इसमें r एंडो 0 है, r एक्सो 0 है, तो ये पूरा वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि r एंडो एंड r एक्सो 0 है। तो अब आपने जो सॉल्व करना है,
इस पार्ट को सोल्व करें, इस पार्ट को सोल्व करें, यानी 114 प्लस 5 8 जा 40 और प्लस 11 को मल्टीप्लाई करें इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो न्यूमेरल्स हैं इनको सॉल्व करके 11 से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह आपके पास जो लेमडा मैक्स आ जाएगी वो आती है 476.30 नैनोमीटर। ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसका हम बेसिकली अगर हम इसको कंपेयर करें इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, तो इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 474 नैनोमीटर है। तो इसका मतलब ये थ्योरी जो है, ये रूल जो है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वैल्यू के करीब तरीन वैल्यू आपको देता है। तो इट मीन्स कि दिस इज वेरी एप्लीकेबल रूल टू डिटरमिन द लैम्डा मैक्स ऑफ पॉलीइंस। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये कहा था कि हम सिर्फ लैम्डा मैक्स नहीं बल्कि एक और वैल्यू मालूम कर सकते हैं, दैट इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। इसका फार्मूला क्या था? मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एप्सिलॉन मैक्स इज इक्वल्स टू 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4n। तो इसमें आपने सिंपली क्या करना है, पेरेंट एप्सिलॉन के ऊपर पावर लगाना है 11, यानी इसके ऊपर आप पावर लगाएं 11 इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स का। तो इस तरह आपके पास लेमडा मैक्स आ जाएगी। तो इसमें हमने कैलकुलेटेड लेमडा मैक्स ये निकाली हुई है 19.14, जबकि इसका प्रैक्टिकल लेमडा मैक्स है वो 18.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ है। तो दोनों देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटीज हैं, करीब तरीन क्वांटिटीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि फेसर-कोहन रूल जो है वो आपको पॉलीइंस का लैम्डा मैक्स और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बताता है। ठीक, चलें आप इस स्ट्रक्चर का लैम्डा मैक्स मालूम करें अभी। सर 528 नैनोमीटर। 528 नैनोमीटर, ये आपका आंसर आ गया है। और किसी का? चलें हम इसको चेक करते हैं। हम सबसे पहले हमें दो वैल्यूज चाहिए, तीन वैल्यूज चाहिए, कैपिटल एम, स्मॉल एम। 315 आ रहा है। कितना आ रहा है? 350 सर। 315। चलें चेक करते हैं कौन सा वैल्यू ठीक है। ठीक है, 349 आ रहा है सर मेरा। हर एक का 349, इसका मतलब हर एक का डिफरेंट आंसर आ रहा है? हम चेक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने कैपिटल एम फाइंड करना है, देन हमने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स फाइंड करने हैं। आर एक्सो तो है नहीं यहाँ पे, बट यू कैन हैव वन आर एंडो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। तो इस तरह आप सबसे पहले अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स फाइंड करेंगे पहले, बल्कि आप स्मॉल एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स काउंट करें तो आसान होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा कंजुगेशन में है। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 डबल बॉन्ड्स हुए। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स भी आपके पास कितने हैं? 5। 5। हाँ, कैपिटल एम बी 5, स्मॉल एन बी 5, 5 आर एंडो एक है, 1 हाँ 1, आर एक्सो कोई नहीं है यहाँ पे। तो अब आप सिंपली इक्वेशन फॉलो करें, दैट इक्वेशन इज क्या है? 114 हाँ प्लस प्लस 5 क्या है? into 8 5 5 इंटू into 5 5, 5 हाँ, देन 5 into फिर क्या है? 5 5 into 48 5 हाँ, आप प्लस 5 480 प्लस 5 इंटू 480 माइनस माइनस 1.7 1.7 into 5 into 5
यहाँ पे देन -16.5 -16.5 into 1 into 1। बाकी को आप काउंट ना करें क्योंकि एक जो नहीं है यहाँ पे वो 0 जीरो आ yes जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आता है। सिंपली आपने क्या आंसर निकाला है, 320 आंसर आता है। अब आप तीनों का आंसर डिफरेंट आ गया है, क्यों? 25 हुआ ना, ये तो सही किया हुआ आपने, लेकिन 25 114 प्लस yes 25 आ गया। ठीक है, ये आ गया 139, ये वाला पार्ट। इसका आप पहले सॉल्व करें, ये आ गया 139। ठीक है, उसके बाद आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.7 है ना, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 5 ये रहा। तो अब आप ये आता है 8.5। आप क्या करेंगे, 48 माइनस 8.5 करेंगे तो ये आता है 5 इंटू 39.5। अब आप 39.5 को मल्टीप्लाई करें, ये 16.5 ही आएगा यहाँ पे। 39.5 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये आता है 197.5। इसको प्लस करें 139 के साथ तो ये आता है एक मिनट, ये कितना है, 39.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 197.5 प्लस 139, ये आ गया 336। अब इस 0.5 इससे माइनस करें 16.5 तो ये आंसर आ गया 320। ठीक है, आप लोगों ने कैलकुलेट गलत किया हुआ yes है। ये लैम्डा मैक्स मालूम करना आसान है, वो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। क्या करना है, 1.7 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ का पावर लेना है n, तो आपके पास सिंपली ये आंसर आ जाता है 8.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। ठीक है, अब दूसरे वाले में गलती नहीं होनी चाहिए। चलें इसमें करें, इसको जल्दी करें, मगर इसमें सर लास्ट वाला दोबारा से समझाए, ये वाला लास्ट में जो जी लैम्डा सर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी वाला जी सर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ये गिवन होता है सर वैल्यू पेरेंट वैल्यू गिवन है, लेकिन पावर के लिए आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है ना, ये इक्वेशन ये बताया था। yes लैम्डा मैक्स मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, 1.74 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, ये पेरेंट वैल्यू है, इसके ऊपर पावर लगाएंगे n। तो हमारे केस में n की वैल्यू कितनी थी, 5, तो हम इसका पावर लेंगे 5 तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है। वो आंसर आया था क्या, ये 8.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। ठीक है, अच्छा yes अब आप इसका करें, लेकिन इस बार आंसर सही लाएं। ठीक है, 453 453। यस सर। ठीक है, और किसी का कोई आंसर? चलें, सबसे पहले हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स काउंट करेंगे। दैट इज, ये सारे डबल बॉन्ड्स कंजुगेशन में हैं तो सबको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 11। स्मॉल एन की वैल्यू आ गई 11, सर 441 आ रहा है हमारा। 441 अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद हम कैपिटल एम देखेंगे, ये कितने हैं, दैट इज, 20 हाँ, एक ये रहा, एक दो ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा 6 ये 7 8 9 9 10 10। तो कैपिटल एम की वैल्यू 10 है। ठीक, निकाली हुई आपने, हाँ। उसके बाद आर
एंडो की वैल्यू कितनी है? 2 2। ठीक है, अब 2 ये 2 तीनों वैल्यूज आ गई, आर एक्सो तो नहीं है, तीनों वैल्यूज आ गई सेम। उसी तरह आपने इक्वेशन यूज करना है, आपको कैलकुलेशन करना अलाउ है, तो आप सिंपली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें। एन की वैल्यू 11, एम की वैल्यू 10, एंडो की वैल्यू 2, तो आपके पास आंसर्स आते हैं 453.30, यानी ऑलमोस्ट 453। तो इनका आंसर ठीक है, आपने जो निकाला हुआ है 453, ठीक है, इनका आंसर ठीक है। और लेमडा lambda मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कितनी निकाली हुई है? lambda max एप्सिलॉन मैक्स, लेमडा मैक्स तो 453 आया, ठीक है, ये ठीक है। लेमडा मैक्स, ये वाला आंसर आर एक्सो आर एक्सो सर एंडो तो कैसे एक्सो ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, रिंग है ना, इस रिंग के बाहर डबल बॉन्ड अटैच है, ये हुआ आर एक्सो, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम नहीं ढूंढ रहे थे वहां पे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वो ठीक भी यही था ना, है। सेम यही कहानी यहाँ भी है, जी आर जी एक्सो। और आर एंडो में रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये आर एंडो हुआ और ये एक आर एक्सो हुआ, इस तरह से। अच्छा, अच्छा, हम दोबारा से वुडवार्ड रूल की तरफ जाते हैं। जो पहले हमने पढ़ा था वो वुडवार्ड रूल फॉर डाइईन्स था। वुडवार्ड फेसर रूल की मदद से अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स का लेमडा मैक्स भी मालूम किया जा सकता है। अनसेचुरेटेड मींस अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स हों, वो सारे डबल सिंगल बॉन्ड्स हों, ठीक है, तो इनको हम अनसेचुरेटेड कहेंगे। कार्बोनाइल स्ट्रक्चरल फीचर कार्बोनाइल हो, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो अनसेचुरेटेड हों, अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड्स हों तो डेफिनेटली वो सेचुरेटेड होगा बहुत सारे, लेकिन अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो तो ये अनसेचुरेटेड हुआ। तो इस तरह के कंपाउंड्स के लिए हम वुडवार्ड फेसर रूल यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है, और ये एसाइक्लिक भी हो सकता है। और आप इन यहाँ पे नंबरिंग देते हैं, यूजुअली कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो पहला कार्बन अटैच है इसको आप क्या कहते हैं? अल्फा। दूसरा कार्बन बीटा, गेमा एंड डेल्टा, ठीक है, इनको आप डेल्टा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं 6 मेंबर्ड रिंग हो या एसाइक्लिक इनोन हो, जैसा कि ये एसाइक्लिक है, या अगर ये एक 6 मेंबर्ड रिंग हो तो पेरेंट वैल्यू क्या असाइन होगी? 215 नैनोमीटर पेरेंट वैल्यू। 5 मेंबर्ड रिंग हो, पेरेंट इनोन वैल्यू क्या असाइन होगी? 209। 6 मेंबर्ड के लिए और एसाइक्लिक के लिए 215, 5 मेंबर्ड रिंग के लिए पेरेंट वैल्यू 209। एसाइक्लिक डाई इनोन के लिए, यानी डाई इनोन तो 244 45 नैनोमीटर। एल्डिहाइड के लिए 206 नैनोमीटर, 207 नैनोमीटर, ये अगर ये एल्डिहाइड हो, आर की जगह एच हो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों, एस्टर्स हों, तो इनके लिए भी, ये भी डेफिनेटली कार्बोनाइल ही फंक्शनल ग्रुप होता है इनमें, इनके लिए पेरेंट वैल्यू असाइन किया जाता है 195 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये तो पेरेंट वैल्यूज की बात थी अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए। और इसके अलावा अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो उनके लिए डिफरेंट वैल्यूज असाइन होंगी। जैसा कि अगर अल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू हो, अल्फा पे तो 10 वैल्यू, बीटा पे 12 वैल्यू, गामा और हायर पे हो तो 18 वैल्यू। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा,
ये वैल्यूज है ना। तो अगर यहाँ पे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो, बीटा पे हो, गामा पे हो, तो हर एक के लिए डिफरेंट वैल्यूज, अल्काइल ग्रुप के लिए और रिंग रेजिड्यू के लिए अल्फा पे 10, बीटा पे 12, गामा एंड हायर पे 18 वैल्यू साइन करिए। इसी तरह डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो तो आप 30 वैल्यू साइन करेंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो तो 5 वैल्यू साइन करेंगे, होमोसाइक्लिक डाइन हो तो 39। और ये स्ट्रक्चर सॉल्व करते हुए आपको ये टेबल्स और चार्ट्स अमूमन दी जाती हैं। तो पोलर ग्रुप्स हो इनमें से कोई, अल्फा पे 35, इनको आपने रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आप चार्ट आपको मिल जाएगा, बीटा पे 30, गामा पे 30 एंड हायर एंड सो ऑन। इसी तरह ये वाला ग्रुप हेलोजन्स में ब्रोमीन हो, अल्फा पे 25, बीटा पे 30, गामा पे 25 एंड हायर। तो इसी तरह हम एग्जांपल्स करते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसा कि ये वाला एग्जांपल है, तो अनसेचुरेटेड है, यस, कार्बोनाइल कंपाउंड है, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड के लिए हम वुडवार्ड फेसर रूल फॉर अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले डिसाइड करें ये साइक्लिक है, ए साइक्लिक इनोन है। पेरेंट वैल्यू क्या बताया था ए साइक्लिक के लिए? बैक जाएं तो आप टेबल में देखेंगे 215 नैनोमीटर फॉर ए साइक्लिक इनोन्स के लिए। अच्छा, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। अल्फा पे एक CH3, और ये कहा था कि अल्फा पे अगर कोई अल्काइल ग्रुप हो तो 10 वैल्यू असाइन करेंगे, बीटा पे 12 और गेमा पे और गेमा और हायर पे 18। तो अब यहाँ बीटा पे कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं? 2, अल्फा पे 1 और बीटा पे 2। तो इस तरह ये आ गया 215 पेरेंट वैल्यू, अल्फा पे 10 1 है, बीटा पे 2 12 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 24। तो इस तरह इसकी जो कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स है 249 नैनोमीटर है, और जबकि इसका ऑब्जर्व वैल्यू भी 249 नैनोमीटर ही है। तो इससे आप बता सकते हैं कि हाउ एक्यूरेट दिस रूल फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ लैम्डा मैक्स ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। दूसरी एग्जांपल, इज इट इनोन? यस। इज इट अनसेचुरेटेड? यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वुडवार्ड फेसर रूल फॉर अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग करेंगे अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा। ठीक है, अब आप पहले ए साइक्लिक है या साइक्लिक है? साइक्लिक है। साइक्लिक में दो केसेस है, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। इज दिस 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड? 6 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड के लिए भी पेरेंट वैल्यू क्या असाइन करते हैं? 215 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन है या नहीं है? तो आप ये देखें, ये तो ऑलरेडी इन ऑन हुआ ना, इन ऑन का पेरेंट स्ट्रक्चर हुआ ये वाला। एक डबल बॉन्ड कार्बन इन और एक ऑन हो कार्बोनाइल और डबल बॉन्ड हो तो ये पेरेंट स्ट्रक्चर हुआ। इसके अलावा कितने डबल बॉन्ड्स एडिशनल हैं तो वो आपके एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आएंगे। तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक और होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और रिंग होता, यहाँ पे एक और होता, तो ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन 2 होते। यहाँ पे कितने हैं? 1। इसको आप डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन में काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पेरेंट स्ट्रक्चरल फीचर है, इन ऑन। ठीक है, आप काउंट करेंगे इसको, तो इट हैज 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इसकी वैल्यू 30। होमोसाइक्लिक डाइन है, यानी एक साइकिल के अंदर 2 डाइन्स हैं, तो ये स्ट्रक्चरल फीचर वहाँ टेबल में देखें, इसके लिए वैल्यू 39। होमोसाइक्लिक डाइन का मतलब एक ही स्ट्रक्चर के अंदर 2 इन्स, यानी जिस तरह हमने होमो एन्यूलर और हेट्रो एन्यूलर, होमो एन्यूलर की केस पढ़ी थी, सेम इसी तरह होमोसाइक्लिक डाइन, तो इसके लिए 39 की वैल्यू है। अब आप अल्फा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बीटा पे कुछ नहीं है, गामा पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, डेल्टा पे एक अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये पूरा अल्काइल ग्रुप डेल्टा पे हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या है? 18। तो अब आप इनको सम करें तो 302 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स आया। ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी इसकी 300 नैनोमीटर है, तो
यू कैन कंपेयर हाउ क्लोज दे आर। ठीक है, इसी तरह सर यहाँ पे पोलर ग्रुप भी है, पोलर ग्रुप को कौन नहीं करेंगे? किसको? हाँ, पोलर ग्रुप भी है सर पोलर, साइकिल के साथ, अगर वो पोलर CH3। पोलर ग्रुप इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच होता तो आप काउंट करते। ठीक है, आपने यहाँ पे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट काउंट किया तो ये पूरा इसी के साथ आ जाएगा, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट काउंट किया आपने। ठीक है, इस सिस्टम के साथ कंजुगेटेड सिस्टम से आउट है ये पूरा। अब यहाँ से आगे आप जितने भी डबल बॉन्ड्स बढ़ाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। मेजर क्रोमोफोर स्ट्रक्चर ये है ना हमारा। ठीक है, तो पहली जो एक हमने क्रोमोफोर की डेफिनेशन पढ़ते हुए हमने दो स्ट्रक्चर्स को कंपेयर किया था, एक साइक्लिक जिसके साथ बहुत सारे साइड में चेन्स अटैच थी, और सिर्फ एक सिंपल सा कंपाउंड था, लेकिन दोनों में स्ट्रक्चरल फीचर कॉमन थी। तो लैम्डा मैक्स और मोलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेम था। क्यों? क्योंकि वो क्रोमोफोर पे एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। तो बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर जितना भी हो उसका क्रोमोफोर पे इस सच कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, इज दिस इनोन? यस। इज दिस इनोन है? यस, ये डबल बॉन्ड और ये कार्बोनाइल हुआ तो इनोन है। अब 5 मेंबर्ड है ये, देखें 1 2 3 4 5 मेंबर्ड के लिए हमने वैल्यू क्या असाइन किया है? 202 नैनोमीटर। बीटा पे एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, रिंग रेजिड्यू या अल्काइल ग्रुप कहें, दूसरा अल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू ये रहा। तो इस तरह दो अल्काइल रिंग रेजिड्यूज हुए यहाँ पे। और अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखें कि कार्बोनाइल के साथ यहाँ से आप रिंग रेजिड्यू नहीं देखेंगे, आप यहाँ से देखेंगे। सेम इसको आप रिंग रेजिड्यू काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो इस तरह ये आ गया पेरेंट वैल्यू 202। बीटा पे दो अल्काइल या रिंग रेजिड्यूज हैं, वैल्यू 24। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है या नहीं है, ये देखें, इस रिंग के हिसाब से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, ये तो कार्बोनाइल है ना। अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता तो एक्सोसाइक्लिक काउंट होता, मगर नहीं है। इस रिंग के हिसाब से ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए वैल्यू 5 असाइन करेंगे, और इस तरह इसकी जो लैम्डा मैक्स आ गई वो 231 नैनोमीटर आ गई। ठीक है, तो बस तकरीबन कॉमन एग्जांपल्स हैं इन सब के लिए। उसी तरह की कहानियां हैं इसमें भी, तो आप देखते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वो इसी की कहानी रहे। ये वाली इनोन्स कीटोन्स थे ना, ये एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये सारे कीटोन्स हैं। देखें, कीटोन्स हैं। हम सेम रूल इस्तेमाल कर सकते हैं एल्डिहाइड्स के लिए भी, यानी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स के लिए भी। तो पेरेंट वैल्यू क्या बताया अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के लिए? 207 नैनोमीटर एल्डिहाइड। अगर अल्फा और बीटा अल्काइल ग्रुप्स हों, अल्फा और बीटा पे अल्काइल ग्रुप्स हों, तो पेरेंट वैल्यू 220 नैनोमीटर। अल्फा बीटा या बीटा बीटा पे अल्काइल ग्रुप्स हों तो 230, या अल्फा बीटा बीटा अल्काइल ग्रुप्स हों तो 242 नैनोमीटर इसकी वैल्यूज होंगी। इसी तरह एसिड्स और एस्टर्स की बात करें तो ये भी इनोन्स ही हैं, इनोन्स। ऑलमोस्ट सेम रूल जो कीटोन्स के लिए यूज हुआ है वही शुरू में बताया था वही है। तो इसके लिए अगर अल्फा और अल्काइल बीटा पे अल्काइल ग्रुप हो, अल्फा बीटा पे 208 नैनोमीटर, अल्फा बीटा या बीटा बीटा पे तो 217 नैनोमीटर। तो इस तरह से आप इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन फॉर इन एक्सोसाइक्लिक अल्फा बीटा डबल बॉन्ड 85 नैनोमीटर, फॉर एक्सोसाइक्लिक अल्फा बीटा डबल बॉन्ड इन 5 और 7 मेंबर रिंग 85 नैनोमीटर। 5 और 7 मेंबर रिंग हो एक्सोसाइक्लिक अल्फा बीटा डबल बॉन्ड, तो वहाँ आप 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जैसा ये दिस वन। अच्छा, ये इनोन है, ये भी इनोन है। इन दोनों का लैम्डा मैक्स
क्या होना चाहिए? हाँ, ये अल्फा है, ठीक है, ये बीटा है, यस सर। हाँ, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो अल्फा बीटा पे अगर अल्काइल ग्रुप्स हों तो ये रूल हमने बताया था, अल्फा अल्फा बीटा, ये रहा ना रूल, अल्फा बीटा या फिर बीटा बीटा पे अल्काइल ग्रुप्स हों तो पेरेंट वैल्यू कितना असाइन होगा? 217 नैनोमीटर। अच्छा, 217 नैनोमीटर। बेसिकली इसके पीछे कोई लॉजिकल थ्योरी नहीं है, बल्कि इन्होंने मल्टीपल कंपाउंड्स को स्टडी करने के बाद सिमिलर ऑब्जर्वेशंस इनको नजर आई, तो उस बेस पे उन्होंने ये वैल्यूज असाइन की हुई, ठीक है। यानी बहुत सारे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर सेम था, तो थोड़े सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज थे, तो उनको स्टडी, उनकी मोलर एब्जॉर्बिविटीज को ऑब्जर्व करके सिमिलैरिटीज देख के उन्होंने एक जनरलाइज किया हुआ है ये। तो ये बताया कि अगर अल्फा बीटा पे सब्स्टिट्यूएंट्स हों, तो जैसे कि ये एक अल्काइल रिंग रेजिड्यू, ये अल्काइल रिंग, दोनों इस केस में दोनों का स्ट्रक्चरल फीचर सेम है, तो इसके लिए पेरेंट वैल्यू क्या साइन होगा? 217 नैनोमीटर। तो ये बताया गया कि फॉर एन एक्सोसाइक्लिक अल्फा बीटा डबल बॉन्ड इन 5 और 7 मेंबर्ड रिंग एड 5 नैनोमीटर बी एब्जॉर्ब्स एट 22 नैनोमीटर। अगर 5 मेंबर्ड या 7 मेंबर्ड हो तो उस केस में इस पेरेंट वैल्यू के साथ 5 का इजाफा होगा, 5 नैनोमीटर। तो इस केस में अब स्ट्रक्चर बी का जो मोलर एब्जॉर्बिविटी होगी, एब्जॉर्बेंस होगी, लैम्डा मैक्स होगी, वो 222 नैनोमीटर होगी, जबकि स्ट्रक्चर ए का लैम्डा मैक्स कितना होगा? ये 217 नैनोमीटर होगा, जबकि स्ट्रक्चर बी का 222 नैनोमीटर। Why is this difference? Because it is 6-membered ring and this one is 7-membered ring. अगर ये 5-membered ring होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको COOH लिखता और ये 5-membered ring बनाता, तो उस केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता मैं, इस केस में भी इन दोनों का लैम्डा मैक्स सेम होगा। क्यों? स्ट्रक्चरल फीचर सेम है, 5 and 7 मेंबर्ड एंड द रिमेनिंग स्ट्रक्चरल फीचर इज सेम। तो हम दोबारा से क्रोमोफोर्स की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज पे आते हैं। हमने ये कहा कि अगर क्रोमोफोर फॉर एग्जांपल बेंजीन है, 254 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, लेकिन सेम स्ट्रक्चर है एनिलीन की बात करें तो इसका वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 280 नैनोमीटर है। व्हाई दिस चेंज इज हियर? 254 से 280 नैनोमीटर का चेंज क्यों नजर आया हमें? ये चेंज क्यों हुआ मोलर एब्जॉर्बिविटी में? लैम्डा Sir, due मैक्स to चेंज क्यों the हुआ? electrons of nitrogen, sir. हाँ, सर इलेक्ट्रॉन्स के वो ऊपर, एनर्जी गैप डिक्रीज होता है, तो इसलिए सर इजीली वो ट्रांजिशन इजीली हो सकता है, इसलिए लो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसलिए लैम्डा मैक्स इंक्रीज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कंजुगेशन को फेवर मिलती है, और होमोलोमो गैप डिक्रीज होता है और वेवलेंथ शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, वेवलेंथ उतना लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। इस केस में व्हाट इज दिस? ये तो इससे भी ज़्यादा है, 286, एनिलीन से भी ज़्यादा। कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अमीन या CH3? अमीन है सर। अमीन है, तो लेकिन मोलर एब्जॉर्बिविटी तो इसकी ज़्यादा आ रही है, वो लैम्डा मैक्स तो इसकी ज़्यादा आ रही है। मिथाइल सर मिथाइल इज Also electron donating species. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट मिथाइल की ज्यादा है एज कम्पेयर टू NH2। मिथाइल की ज़्यादा है या अमीन की ज़्यादा है? क्योंकि सर कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव
अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आप को मैं बता देता हूँ, पीरियोडिक टेबल से ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा डेफिनेटली उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ये है 2.5, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है 3, ठीक है, 3.0 या 3 है। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, इट मीन्स की और इसकी कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जो है कार्बन की ज़्यादा होनी चाहिए, ये लेस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक रीज़न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है। और दूसरा, इस रेजोनेंस में इंक्रीज वेवलेंथ में एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज की वजह हाइपर कंजुगेशन है, कि प्रोटॉन जो है वो शिफ्टिंग होती है ना, एक प्रोटॉन निकल जाता है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये कंजुगेशन में ये पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन कहते हैं ना, प्रोटॉन शिफ्टिंग, प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है और प्रोटॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके साथ रेजोनेट कर जाते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, मोर लॉन्गर वेवलेंथ। जी सर, एनिलीन के केस में हम होमोलोमो को डिस्कस करना चाहें तो इसमें एनर्जी के इससे CH3 से कम नहीं होगा? एनर्जी गैप यहाँ ज़्यादा है और NH3 की केस में, और यहाँ पे कम है CH3 की केस में। ये NH3 का केस हुआ, यहाँ ज़्यादा है, ये कम है, कहाँ पे? CH3 में। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग शॉर्टर वेवलेंथ है 280, इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। ये लॉन्गर वेवलेंथ है, इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी डिफरेंस कम है, ठीक है। ये एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह कंजुगेशन को ज़्यादा फेवर मिल जाना यहाँ पे, किस वजह से? इस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? जी सर। हाँ, उसी की वजह से। अच्छा, दूसरी कहानी पे जाते हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एनिलीन 280 है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने एनिलीन को प्रोटोनेट किया तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन दोबारा से बेंजीन जैसी ही हो गई। क्यों? यहाँ देखें, इन दोनों का वाई। यहाँ सर बिकॉज क्योंकि इसके लोन पेयर्स नहीं रही है अभी, उसने वो बनाया कोऑर्डिनेट, वो बॉन्ड बनाया है सर, इसलिए इसके लोन पेयर्स अभी बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो गया सर, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ चला गया, ठीक है, NH3 बन गया, तो कोऑर्डिनेट different- कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है सर। हाँ, तो अब ये कंजुगेशन में हिस्सा नहीं लेगा और इसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन 254 नैनोमीटर आ गया, ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरह अच्छा, तो इसी तरह इसमें हमने ये रीज़न बताई कि नाइट्रोजन प्रोटोनेट हुआ है, डोनेट हुआ है प्रोटॉन को, इस वजह से इसका जो लोन पेयर है
अब वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसका वेवलेंथ दोबारा से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे इनको कंपेयर करें, क्रोमोफोर्स हैं। यहाँ देखें, ये क्या है, एल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड है। ये इसके मुकाबले में यहाँ पे हाइड्रोजन एल्डिहाइड का रिप्लेस करें क्लोरीन के साथ, ये फिर अमीन के साथ, ये फिर OH3 इथॉक्सी ग्रुप के साथ, OH ग्रुप के साथ। बाकी स्ट्रक्चरल फीचर यहाँ कॉमन है, सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, एक पार्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। वो कौन सा? हाइड्रोजन कहीं रिप्लेस हुआ है क्लोरीन से, अमीन से, OET से, OH से। अब इस केस में इसका वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो 293 नैनोमीटर है, लेकिन क्लोरीन जहाँ पे अटैच है यहाँ पे इसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो 220 नैनोमीटर है, ठीक है, इन हेक्सेन सॉल्यूशन। अमीन में 220 नैनोमीटर, इसमें भी वही है 11 नैनोमीटर और इथॉक्साइड के साथ, और इसी तरह ये जो OH है यहाँ पे 208 नैनोमीटर है। यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करें, पहले वेवलेंथ में डिक्रीज, शार्प डिक्रीज आया, 293 से 220, तकरीबन 70 का फर्क है, ऑलमोस्ट नियरली। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लोरीन जो है वो एक, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसकी कंजुगेशन को कम कर देगा, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कमज़ोर कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? ये होती है 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखें तो ये 2.1 होती है, 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्लोरीन में ज़्यादा है, तो इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर को वीक करेगा, तो डेफिनेटली ये एनर्जी डिफरेंस होमोलोमो के बीच बढ़ जाएगा और ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, यानी मोर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बताया था जनरल ओवरऑल रूल की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तो वो क्या करते हैं? कंजुगेशन को फेवर करते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर को फेवर करते हैं, और उनकी वजह से वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होती है टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। जबकि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उनकी वजह से कंजुगेशन को फेवर नहीं मिलता और वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होती है टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। सेम यही कहानी है। अब दूसरा एग्जांपल नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी मैंने आपको बताई थी, ये भी ऑलमोस्ट 3 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 है, जस्ट लाइक क्लोरीन 3.0। लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन भी सेम है, 220 नैनोमीटर 220 नैनोमीटर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव आया एंड नाइट्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन 3.5, तो और ज़्यादा वेवलेंथ शिफ्ट हुई टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। और इसमें अच्छा OH है, चूँकि यहाँ पे साथ में जो इथाइलिन अटैच है, तो रिमेनिंग इथाइलिन इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इतना डोनेटिंग नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट ऑन दिस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू दिस वन।
इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ शिफ्ट हो रहा है और टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, और ज़्यादा शॉर्टर हो रहा है यहाँ पे वेवलेंथ। तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जितना इलेक्ट्रॉन विदड्राविंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन उतनी ही शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ सर एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सेकंड जो हमारे पास कंपाउंड है 220 नैनोमीटर, उसके नीचे हेक्सेन लिखा हुआ है, हाँ, जबकि NH2 के केस में 220 नैनोमीटर वाटर लिखा हुआ है, तो ये क्या है सर? ये सॉल्यूशन, इस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया गया है हेक्सेन में, फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसका लैम्डा मैक्स रिपोर्ट किया गया है। तो सर यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो फिर दोनों का ये लैम्डा मैक्स सेम क्यों आया? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.0 क्लोरीन की। नाइट्रोजन की कितनी है? यानी कि हेलोजेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस, सबका ठीक सेम नहीं है ना, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज नहीं हो रही, सेम नहीं है सारे हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, सारे की सेम नहीं है सर, लेकिन नाइट्रोजन से तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नहीं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। पीरियोडिक टेबल में देखें, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज 3 दी हुई है यहाँ पे। ये देखें ना कि नाइट्रोजन जो है वो एक पीरियड अप है एज कंपेयर टू क्लोरीन। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है, क्लोरीन थर्ड पीरियड में आता है। तो डाउन द ग्रुप आप फ्लोरीन के मुकाबले में, यस फ्लोरीन अगर यहाँ होता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 4 होती, सेम ग्रुप में आते, सेम पीरियड में आते। ये क्लोरीन है, ये एक पीरियड डाउन है, तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन नाइट्रोजन फिर वो ग्रुप के हिसाब से देखें तो वो फिर लेफ्ट साइड पे आता है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 3.0 3.0। ठीक है, अच्छा क्लियर हुआ ये? तो सर ये हेक्सेन और ये वाटर है क्या, ये क्या है? ये आप स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड करते हैं किसी कंपाउंड का, तो आप सॉल्यूशन बनाते हैं ना, पहले किसी बोतल में Yes. सॉल्यूशन बना के ट्यूब में डालते हैं, फिर एब्जॉर्बेंस लोड करते हैं। तो इस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया गया है हेक्सेन में, और लैम्डा मैक्स रिपोर्ट किया गया है, और इसका सॉल्यूशन वाटर में बना के इसका लैम्डा मैक्स रिपोर्ट किया गया है। तो सर यहाँ पे जो हेक्सेन है ये सल्यूट है? ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। अच्छा, ठीक है, तो सर सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा, और इसकी वजह से भी फर्क पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता, इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता कि 293 से 220 में शिफ्ट हो। बहुत सारी पेपर्स हैं, मेरी अपनी भी पेपर्स हैं, जिसमें हमने स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ पे सॉल्वेंट्स का इफ़ेक्ट डिस्कस किया हुआ है। तो इफ़ेक्ट होता है, इवन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है सॉल्वेंट्स का, और इमिशन स्पेक्ट्रम पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से सॉल्वेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी को फेवर करते हैं, कौन से सॉल्वेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी को फेवर नहीं करते। ठीक है, तो ये इस हिसाब से लेस पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादातर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग ज़्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू मोर पोलर सॉल्वेंट्स, अगर कोई पोलर कंपाउंड हो तो इसी तरह। अच्छा, नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। तो हम किसी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम के बिहेवियर को जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो अगर किसी कंपाउंड में कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोफोर, द स्पेक्ट्रम अपीयर्स एज सम ऑफ द ऑल एक्सपेक्टेड एब्जॉर्प्शंस। अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर मल्टीपल क्रोमोफोर्स हैं, तो जो स्पेक्ट्रम आएगा वो उन सारे क्रोमोफोर्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का सम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोफोर का एब्जॉर्प्शन पीक ये है, दूसरे का ये है,
तीसरे का इसको मैं तीसरे कलर को रिप्रेजेंट करूं यहाँ से इस तरह से, तो 3 क्रोमोफोर्स हैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन हर एक के लिए, हर क्रोमोफोर के लिए अलग अलग पीक नहीं आएगा, बल्कि इन तीनों का सम होगा। तो जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम आप रिपोर्ट करेंगे, जो आपको डिस्प्ले होगा वो कैसा होगा, यूं, देन फिर इस तरह का स्पेक्ट्रम होगा। तो ये जो हो सकता है यहाँ एक छोटा सा पीक इस तरह का हो, तो ये जो सी क्रोमोफोर, बी क्रोमोफोर है, उसका पूरा जो पीक है वो सी के अंडर में ही के एरिया में ही आ जाएगा, और इस तरह आपको ओवरऑल सम ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नजर आता है। ठीक है, हर क्रोमोफोर का इंडिविजुअल पीक नजर नहीं आएगा, बल्कि सारे क्रोमोफोर्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का सम डिस्प्ले होता है। तो इसी तरह if two chromophores are identical, single absorption band will appear with approximately twice intensity. आइडेंटिकल क्रोमोफोर जितने ज़्यादा होंगे उतनी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। एक कंपाउंड है जिसमें आइडेंटिकल क्रोमोफोर एक है, तो उस वेवलेंथ में इंटेंसिटी इतनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर दूसरा है जिसमें आइडेंटिकल क्रोमोफोर्स दो हैं, यानी कार्बोनाइल 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 बहुत सारे हैं, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा क्रोमोफोर्स बढ़ते जाएंगे, आइडेंटिकल क्रोमोफोर्स, इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इंटेंसिटी का ताल्लुक है नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोफोर्स पे। जिस तरह कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। इसकी वजह क्या है, जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोफोर्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं, यानी आइडेंटिकल क्रोमोफोर्स इंक्रीज हो रही होती हैं जो सेम वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाउ यू विल इंटरप्रेट हाउ एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड हाउ यू विल इंटरप्रेट इट। ये एक कंपाउंड है इनोन टाइप का, साइक्लिक। ठीक है, यहाँ पे कितनी टाइप्स की ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। डेफिनेटली इट हैज ऑक्सीजन, लोन पेयर है, एन है, एन ऑर्बिटल है, डबल बॉन्ड है, पाई भी हो सकता है, तो सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सिग्मा भी हो सकता है। तो सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशंस की एनर्जी तो ज़्यादा होती है, वो 200 से बिलो आती हैं। अब यहाँ पे दो पीक्स नज़र आ रही हैं, तो ये किस की हो सकती हैं। एक हो सकता है एन पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है, सिग्मा, सॉरी, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब यहाँ पे दो पीक्स हैं, एक पीक है 220 से लेके 250 तक, ठीक है, ये वाला पीक इस वेवलेंथ रेंज में। दूसरा है एब्जॉर्प्शन पीक एट यहाँ से यहाँ तक तकरीबन फैला हुआ है 320 समथिंग पे। किसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इस पीक की एनर्जी कम है। तो इट मीन्स कि ये शॉर्टर वेवलेंथ पे है ना। शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स कि इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी ज़्यादा यूज हुई है। तो अब आप यहाँ पे दो, इस कंपाउंड के अंदर दो पॉसिबल ट्रांजिशंस थी, एक एन पाई और एक पाई पाई। किस ट्रांजिशन की एनर्जी ज़्यादा होती है, एन बीच में होता है, पाई यहाँ होता है, देन ऊपर पाई स्टार होता है ना। तो इट मीन्स कि पाई टू पाई एन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी चाहिए। हाँ, इट मीन्स कि जो कम एनर्जी वाली ट्रांजिशन होगी वो एन पाई स्टार होगी। तो दिस वन इज कम एनर्जी वाली ट्रांजिशन, एन पाई स्टार ट्रांजिशन। और जो ज़्यादा एनर्जी वाली ट्रांजिशन है वो कौन सी हो सकती है, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, यहाँ से यहाँ तक पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। तो यहाँ पे दो पीक्स नज़र आ गई हैं इस कंपाउंड के लिए, इस क्रोमोफोर की वजह से। तो ये दोनों पीक्स एक किस ट्रांजिशन की वजह से, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, और किस ट्रांजिशन की वजह से, एन पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। अब यहाँ पे मोलर एब्जॉर्बिविटी की वैल्यू भी दी हुई है। आपको कंसंट्रेशन नाउन हो तो एब्जॉर्बेंस से आप मोलर एब्जॉर्बिविटी मालूम कर सकते हैं। ये मोलर एब्जॉर्बिविटी पाई पाई स्टार वाली ट्रांजिशन के लिए दी हुई है 18,000, जबकि दूसरी है सिग्मा 1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस ट्रांजिशन
दिस वन इज अलाउड ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है, और जबकि एन पाई स्टार ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल हमने क्या कहा था, वो ट्रांजिशन जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करती हैं अलाउड ट्रांजिशन, जो नहीं करती वो फॉरबिडन। लेकिन प्रैक्टिकली आपको दोनों नजर आती हैं, अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन। फर्क क्या होता है, अलाउड ट्रांजिशन मोर फेवरेबल होती है और इसका लैम्डा मैक्स हाई होता है, जबकि फॉरबिडन ट्रांजिशन लेस फेवरेबल होती हैं और इनका वेवलेंथ, इनका जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होता है उसकी वैल्यू लो होती है। तो इस तरह से आप इस कंपाउंड की यूवी स्पेक्ट्रम की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है सर जी, एन टू पाई स्टार मोर फेवरेबल नहीं होगी एज कम्पेयर टू पाई स्टार? कौन सी? एन टू पाई स्टार मोर फेवरेबल होनी चाहिए ना सर, क्योंकि ये छोटे लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, जबकि नहीं, पाई टू पाई स्टार मोलर एब्जॉर्प्टिविटी देखती हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, जिसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो अलाउड ट्रांजिशन और मोर फेवरेबल होगा। इसका ताल्लुक वेवलेंथ, किस वेवलेंथ पे है, इससे नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक से है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक से है। जितनी ज़्यादा मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना फेवरेबल होगा। दिस वन इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, सर ये क्यों होता है ऐसा? किस, इसलिए कि पाई पाई स्टार ट्रांजिशन इस यूजुअली ट्रांजिशन जो है वो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन ज़्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू पाई, एज कंपेयर टू एन पाई स्टार ट्रांजिशन। तो यूजुअली इतना पॉसिबल, नॉर्मल ट्रांजिशंस देखते हैं तो इसमें एन ऑर्बिटल्स यानी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी कम होती है कि वो एंटी बॉन्डिंग में जाएं, बल्कि बॉन्डिंग वाले एंटी बॉन्डिंग में जाना प्रीफर करते हैं। लोन पेयर वाले तो अपनी जगह लोन पेयर में ही रहना पसंद करते हैं, वो बॉन्डिंग में जाना इतना पसंद नहीं करते, यानी फेवरेबिलिटी उनकी उतनी, चांसेस कम होते हैं। इस वजह से जो बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अच्छा, हम प्रेजेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, तो जैसे हम यूजुअली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम को कैसे डिस्प्ले करते हैं, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखें एक कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया गया है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी हम इसको सिंपली क्या कहेंगे, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। बहुत सारी और स्ट्रक्चर लेस पीक्स नज़र आएंगी, लेकिन आपके लिए जो मेजर पीक होती है वो वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। हम एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ भी प्लॉट कर सकते हैं और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी वर्सेस वेवलेंथ भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जिसमें आपको बहुत सारी पीक्स नज़र आएंगी इस तरह से इवन। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोफोर्स पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड करता है। आप एनालिसिस के लिए कौन सा ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, आप अगर आपने लैम्डा मैक्स सेलेक्ट करना हो तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे देख के तो अंदाज़ा नहीं हो रहा, ये दोनों तकरीबन इक्वल लग रही हैं। तो आप लोग जब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में, कर्सर को इस पॉइंट के टिप पे लेके आ जाए ना, ऐसे कर्सर को टिप पे लेके आ जाएं, तो इन तीनों पॉइंट्स पे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू नज़र आ रही होगी वो आप उसको लैम्डा मैक्स सेलेक्ट करेंगे। या फिर ये भी होता है कि इस स्पेक्ट्रम का आपको एक्सेल डेटा भी मिलता है, एक्स एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस, एक टेबल में एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज़ होती हैं और एक टेबल में वेवलेंथ की वैल्यूज़ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जिस वेवलेंथ पे होगा आप एक्सेल में देख के सिंपली डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो इस पीक से आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, क्या, एब्जॉर्बेंस भी मिल रही है, वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, फिर इस एब्जॉर्बेंस से आप मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो कुछ फूड डाइज एंड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं। ये फूड में इस्तेमाल होने वाले कुछ कलर्स हैं,
जो लार्ज कंजुगेटेड सिस्टम है इनका, ये है ब्रिलियंट ब्लू, इसको आप FCF कहते हैं, और ये कोकीन है। तो कोकीन ब्रिलियंट ब्लू का कलर ब्लू, ये ब्लू कलर का डाई है, जबकि कोकेन जो है वो रेड कलर का डाई है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसका देखें तो कोकीन की जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है वो 400 से 4 तकरीबन ये 450 से 580 नैनोमीटर के बीच में इसका एब्जॉर्प्शन पीक है, ठीक है, इसका कोकीन का। तो जबकि ब्रिलियंट ब्लू का जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे है, 600 से लेके 650 नैनोमीटर तक। सबसे पहले ये बताएं कि इसका कलर रेड क्यों है कोकीन का, और इसका कलर ब्लू क्यों है। 450 से 550 के रेंज में जब एब्जॉर्प्शन होती है तो उसका कम्प्लीमेंट्री कलर, यानी जो रिफ्लेक्ट होते हैं, कंपाउंड एब्जॉर्ब नहीं करता, जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वो हमें परसीव होती है और कंपाउंड का कलर वैसा नज़र आता है। तो 450 से 550 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब होती है तो रेड कलर जो है वो हमें परसीव होता है। ये इसलिए कि जो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होती हैं, अनएब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस होती हैं, उनका म्यूचुअल कलर रेड होता है। इसी तरह जहाँ पे ये कहीं कोई भी कंपाउंड इस रेंज में एब्जॉर्ब करेगा वेवलेंथ, वो कोकेन के अलावा कोई और भी कंपाउंड हो, अगर वो इस वेवलेंथ रेंज में एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कलर रेड होगा, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो। सेम इसी तरह अगर कोई कंपाउंड जो इस वेवलेंथ रीजन में 600 टू दिस 680 नैनोमीटर की रेंज में एब्जॉर्प्शन पीक होगी तो उसका कलर ब्लू होगा। क्यों? क्योंकि वो रेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और ब्लू रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट या कम्प्लीमेंट्री कलर के तौर पे हमें उसकी ब्लू कलर नज़र आ रही होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में। सेम इसी तरह फंक्शनल ग्रुप का इन्फ्लुएंस भी होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, जैसा कि ये ब्लैक कलर का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये बेंजीन का है। ये ब्लू कलर का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें, ये फिनोल का है। तो बेंजीन के मुकाबले में फिनोल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शिफ्ट हुआ है रिलेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ। इसी तरह नाइट्रोफिनोल का वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन है, ये और लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये देखें कि इन सब का एब्जॉर्प्शन पीक 400 से लेस है, यानी इनका कम्प्लीमेंट्री कलर और एब्जॉर्प्शन कलर दोनों यूवी रीजन में है। तो इट मीन्स कि ये सारे कंपाउंड्स कलरलेस हैं, बेंजीन, फिनोल, नाइट्रोफिनोल कलरलेस हैं। क्यों? क्योंकि विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे। अगर ये विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करते तो इनका कम्प्लीमेंट्री कलर हमें नजर आता, मगर ये सारे विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये कि बेंजीन के मुकाबले में फिनोल का वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लॉन्गर वेवलेंथ पे क्यों है? क्योंकि सेम वही इफेक्ट, कंजुगेशन, रिजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आता है ऑक्सीजन का, यहाँ पे लोन पेयर्स डोनेट हो जाते हैं। सेम इसी तरह पी नाइट्रोफिनोल की बात करें तो यहाँ पे और कंजुगेशन को मोर ये ऑक्सीजन और ये नाइट्राइट का ये कंपोनेंट भी कंजुगेशन में हिस्सा लेता है। और जैसे जैसे कंजुगेशन को फेवर मिलती है, एक्सटेंड ऑफ कंजुगेशन होती है, तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अब इन दोनों स्ट्रक्चर में देखें, ये पेरिडीनिसोलोन है और ये बेंजीन है। अब तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे रिंग्स हैं इसके अंदर, लार्ज मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और बेंजीन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तकरीबन सेम रीजन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन का ताल्लुक किससे है? ज़्यादातर क्रोमोफोर्स और कंजुगेशन से है। तो यहाँ पे देखें तो कंजुगेशन, आल्दो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क है बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन सिस्टम बहुत छोटा है, स्मॉल कंजुगेशन सिस्टम, जस्ट लाइक बेंजीन। तो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी सेम उसी रीजन में होगा जैसे बेंजीन के रीजन में है।
तो जितना ज़्यादा कंजुगेशन सिस्टम बड़ा होगा, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मॉलिक्यूल्स के साइज बड़ा होने से स्ट्रक्चर एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ पे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मॉलिक्यूल में कंजुगेशन एक्सटेंड होने से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये लास्ट है, बस इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चीज़ें डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वुड यू एक्सपेक्ट एब्जॉर्ब एट ए लॉन्गर वेवलेंथ इन द यूवी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? किसका वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन लॉन्गर होना चाहिए और क्यों? डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में है, फिर ये इसके साथ कंजुगेशन में है, ये फिर इसके साथ कंजुगेशन में है, फिर ये इसके साथ कंजुगेशन में है, पूरा सिस्टम कंजुगेशन में, ठीक, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड्स का। यहाँ देखें, ये वाला डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है इसके साथ, यस। ये वाला डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है इसके साथ, यस। ये वाला डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है किसी के साथ, नो। यहाँ से आगे कंजुगेशन नहीं है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो कंजुगेशन होती, मगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तो ये कंजुगेशन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजुगेशन जितनी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होता है ना। तो A will absorb it longer wavelength as compared to B। अब आ गया समझ में? तो इसका लैम्डा मैक्स ज़्यादा होगा as compared to लैम्डा मैक्स ऑफ B। काफ़ी इतना? यस जी काफी। चलें ठीक है, हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। अटेंडेंस मेरे पास साथ महबूब हैं, अंसार हैं और मर्जिया हैं। 6 स्टूडेंट्स थे, बाकी कहाँ चले गए? नेट का इशू होगा सर। चलें ठीक, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।